غلط کوئی ہر ایک بت کو میرے نبی نے حرم کے باہر ہٹا کے چھوڑا، اور عمر چڑھے تھے کر کے ارادہ کریں گے جا کر حضرت کو قتل، مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دانشوران قوم ملت، کلمہ شریف بھائیوں، پردے میں تشریف فرما اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان شکر فضل کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو وجہ کائنات، تخلیق کائنات، سیاح لامکان، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، محبوب کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ بزرگوں، ساتھیوں، ایمانی بھائیوں، لیکن الحمدللہ یقین جانے اڑیسہ آ کر یہ بات کہی جا سکتی، اور میں نہیں، مجھ سے قبل جلسے کے دنیا کے شیر کہے جانے والے مقرر یعنی حضرت مولانا سید طاہر حسین غیابی دامت برکاتہم العالیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہندوستان بھر کا جلسہ ایک طرف، اڑیسہ کا جلسہ ایک طرف۔ یہاں کی مہمان نوازی، یہاں کی اخلاق کریمانہ، یہاں کی ہندو مسلم بھائی چارگی کا جو سبق ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے، گنگا جمنی تہذیب کی مثال جو لوگوں سے سنا کرتے تھے، چاہے آپ کٹک اترو، چاہے بھونیشور اترو، کھردہ روڈ اترو، جاج پور اترو، بالیشور اترو، کہیں بھی جاؤ، بہرحال جہاں تک اڑیسہ ہے وہاں تک آپ کو محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ یہاں کے ہندو مسلم بھائی چارگی کی کھلی دلیل اور مثال ہے۔ اور میں بھی بہت مختصر سی عمر میں، یقین جانے تقریباً 4 سال سے اڑیسہ مستقل ہر سال 4-5 بار تو حاضری ہو ہی جاتی ہے۔ یقین جانے میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی لفاظی کے طور پہ نہیں، اور یہ دعا دے کے جاتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں میں آپسی محبت ہے، چاہے ہندو مسلم ہوں یا کسی اور اعتبار سے جو آپ کے میل ملاپ اور محبت ہے، اللہ اس محبت کو مزید تقویت بخشے، کسی بد نظر کی نظر سے آپ کی اس محبت کو اللہ بچائے،
آپ کا یہ اسٹیٹ، آپ کا یہ صوبہ اڑیسہ آج بھی بہت ساری ایسی نفرت کی ہوا سے بچی ہوئی ہے جو دیگر اسٹیٹ یا دیگر صوبوں میں نفرت کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کے اس اسٹیٹ کو قبول کرے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو قبول کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ مقصد کے کوئی چیز وجود میں نہیں آیا کرتی ہے۔ آپ نے ترتوا والوں نے، آپ سب لوگوں نے اتنی محنت کیوں کری، علماء کرام کو دور دراز سے دعوت کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ نعت النبی سنی جائے یا تقاریر سنی جائے اور سن کر زندگیوں کی تقدیر نہ بدلے، زندگیوں میں انقلاب برپا نہ ہو۔ اگر صرف سننے کے لیے جلسہ کیے ہوئے ہیں تو سچی بات یہ کہ ہم تو بہت دور کی بات وقت کہ اگر آپ جلال الدین سیوطی کو بھی بلا لیں یا یہ کہ امام غزالی کو بھی بلا لیں تب بھی مجھے لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ بس ایک مقصد ہونا چاہیے، دل میں ایک عزم ہونا چاہیے، اس عزم کے ساتھ آپ آئے ہو، اور اگر نہیں بھی آپ کے دل میں یہ بات ابھی تک نیت میں نہیں شامل ہوئی ہے، آپ اپنی نیت میں اس بات کو شامل کر لو کہ انشاءاللہ حضرت علماء کرام نے جو باتیں کہی ہیں یا یہ کہ اس خاکسار کی زبان سے جو بات نکلے گی آپ اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ انقلاب برپا کرو گے۔ اگر کرو گے تو ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے۔ بزرگوں ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے آپ سب کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ فرماتا ہے کہ تم غمگین مت ہوا کرو، رنجیدہ مت ہوا کرو، تم اپنے آپ کو کوسا مت کرو، تم کامیاب رہو گے، لیکن کامیابی کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ تم مومن بن جاؤ، تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اب آپ غور کریں گے ہم تو ویسے ہی مسلمان ہیں، ہم سے ایمان کا طلب کیا ہے؟ یقین جانو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ آپ کے پاس شاید ایمان کا تھرمامیٹر نہ ہو، اگر تھرمامیٹر نہیں ہے تو آپ خرید لینا۔ کہاں خریدو گے؟ کسی میڈیکل اسٹور میں؟ نہیں صاحب، وہاں آپ کو ایمان کا تھرمامیٹر نہیں ملنے والا۔ وہاں تو بخار ناپنے کی مشین مل سکتی ہے، وہاں تو ہارٹ کتنے ہیں، آپ کو پریشر کتنے بڑھے ہوئے کہ گھٹے ہوئے ہیں، یہ سب ایجادات تو مل سکتے ہیں، یہ سب مشینیں تو مل سکتی ہیں، لیکن ایمان کا تھرمامیٹر ملے گا کہاں؟ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ظاہر ہے کٹک میں بھی نہیں ملنا، بھونیشور میں بھی نہیں ملنا۔ بزرگوں ساتھیوں، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرید آئے، حضرت تھانوی نے پوچھا تم ناشتہ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت تھانوی کی جو مرید تھے اس نے برجستہ کہا حضرت ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت تھانوی نے پوچھا اچھا ناشتہ کی ہو تو کیا ناشتہ میں کی ہو یہ بھی بتا دو۔ حضرت تھانوی کے جو مرید تھے اس نے کہا کہ میں نے حلوہ پراٹھا کھایا ہے، چائے پیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ذرا دل کے کان سے سننا۔ حضرت تھانوی نے کہا یہ تو تم نے جسم کا ناشتہ کیا، تم نے روح کا ناشتہ کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے یہ پوچھنا مقصد ہے۔ جسم کا ناشتہ نہیں کرو گے تمہارا جسم تلف ہو جائے گا، تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، کام کرنے میں طبیعت نہیں لگے گی، تمہیں کمزوری محسوس ہوگی۔ تم نے جسم کے اعتبار سے تو چائے پی لیا اور حلوہ پراٹھے کھا لیے، لیکن یہ بتاؤ کہ اپنی روح کا بھی تم نے ناشتہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ وہ مرید پریشان ہو گیا کہ ہماری روح بھی ناشتہ کرتی ہے، وہ کیسے روح ناشتہ کرتی ہے؟ حضرت تھانوی سے ان کے مرید نے پوچھا حضرت آپ بتا دیں کہ روحانی ناشتہ کیا ہے، کیسے ہم اپنی روح کو ناشتہ کرائیں گے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو صبح جب اٹھا کرو تو فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، اور فجر کی نماز کے بعد کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت کر کے 11 بار استغفار پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے روحانی ناشتہ۔ جب روح ہماری ناشتہ کیا کرتی ہے تب یقین جانو ہمارا دل بھی زندہ ہوا کرتا ہے، ہمارے ضمیر بھی زندہ ہوا کرتے ہیں، ہمارا دل ہرا بھرا رہا کرتا ہے، غلط اور صحیح کی تمیز ہمارے ضمیر کو ہوا کر پاتی ہے۔ ورنہ یاد رکھو صبح سویرے اٹھ جاتے ہو، دنیا کے کام کاج میں بزی ہو جاتے ہو، ہر کام آپ کے اور ہمارے وقت پہ ہو جایا کرتے، لیکن ہم روح کا ناشتہ نہیں کرا پاتے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے ایمان کے تھرمامیٹر لینے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ سونا خریدنا ہے سونار کے پاس جانا ہے، اچھے کپڑے خریدنا ہے کسی مال میں جانا ہے، کسی اچھی دکان میں جانا ہے،
तब आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा सोना मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको ईमान का थर्मामीटर खरीदना है, ईमान का थर्मामीटर बनाना है, अल्लाह वालों की मजलिस इख्तियार करना पड़ेगी, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी। अल्लाह वाले आपको देंगे, ये ईमान का थर्मामीटर है, नापा करो ईमान का सेल्स कितना है, घटा तो नहीं है, क्योंकि ईमान घटता भी है बढ़ता भी है। जब आप गुनाह करते हो आपका ईमान घट जाया करता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, जानी जब ज़िना करता है उसके अंदर से ईमान रुखसत हो जाता है, जब ज़िना से फारिग हो जाता तब उसके ईमान को लौटा दिया जाता। लेकिन खूब याद रखो, जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, जिस तरह साफ सुथरा क्लीन बच्चा पैदा हुआ करता है, यानी बच्चा अगर मर जाए कोई हिसाब व किताब नहीं, क्योंकि दुनिया में उसकी परवरिश नहीं हो पाई, दुनिया में उसकी नशोनुमा नहीं हुई है, अभी उसने गलत और सही को नहीं देखा, अभी उसने दुनिया की बारीकियों को नहीं देखा, अभी उसने दुनिया के हंसी मनाजिर को नहीं देखा। बच्चा साफ सुथरा हुआ करता है, जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, जैसी जैसी उम्र परवान चढ़ती है, जवानी को छूता है, नौजवानी की उम्र को उसके दहलीज पे कदम रखता है, फिर क्या होता है, आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनते हैं, इरादे गलत सोचते हैं, कदम गलत चलते हैं, दिमाग गलत सोचता है। जब गलत बातें सोचेगा, गलत बात बोलेगा, गलत सुनेगा, गलत देखेगा, गलत चलेगा। यही है अल-ईमान यज़ीद व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। जाना पड़ेगा अल्लाह वाले की दुकान में, उनकी सोहबत में जाना पड़ेगा, अल्लाह वाले से देख के, अल्लाह वाले से अपना चेकअप कराओ। तुम बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, अपना इलाज व मुआवजा कराते हो। ऐसे ही रूहानी के लिए, रूहानी अमराज के लिए कभी किसी को तौफीक हुई कि हम रूहानी एतबार से जो मरीज है, हमारी रूह जो मर चुकी है, हमारा दिल जो मर चुका, हमारा ज़मीर जो मर चुका, अगर ज़मीर नहीं मरा है, ज़मीर जिंदा है, तो बताओ तो सही हालात क्यों बुरे आए, क्यों बुरे आए। माँ बाप की नाफरमानियां हम करते, पड़ोसी का हक अदा हम नहीं करते। बताओ तो सही, दिल पे हाथ रख के सोचो, ये समाज, जिस समाज के लोगों के इस बात की तालीम दी गई थी कि तुम शराब न पीना, तुम जहेज न लेना, लेकिन इस समाज के नौजवान लड़के आज नशे के कितने आदी हो चुके, नशे में चूर होकर बीवी को तलाक देता है ये नौजवान। रांची का वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया, सुनोगे तो कलेजा मुंह को आएंगे। रांची में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 22 साल की उम्र थी, तुम्हें पता है उसको, वो इतना बड़ा गजेरी था, इतना बड़ा नशेड़ी था, रोजाना बिला नागा शराब पीता था, और शराब पीने की लत की वजह से उसे कितनी बीमारियां लायक थी, कितनी बुराइयां उसमें पाई जाती थी। रोजाना चौक चौराहे पे बैठकर लोगों के इंतजार में रहता था कि कोई अकेला आए, उसको लूटा जाएगा, उसकी पॉकेट काटी जाएगी, उसके जेब कतरे जाएंगे, उससे पैसे लिए जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट जाता था, शराब की बोतलें खरीदता था, रात की तन्हाई में वो बंदा शराब पीता था। तुम्हें पता है ये लत जब कायदे से लग गई, जब वो इसकी यानी शराब को अपनी जिंदगी का लाजिम मलजूम समझने लगा, अब शराब के बगैर जिंदगी नहीं कर सकती। ऐसा हुआ, एक दिन की बात है, जब रात के 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, वो लड़का ऐसे ही शराब के नशे में चूर होकर घर आया। उसकी बड़ी बहन घर के दरवाजे में भाई का इंतजार कर रही थी। बहन को क्या पता कि आज मेरा भाई शराब के नशे में चूर होके आएगा और कुछ ज्यादा पी के आएगा, मेरी इज्जत पे वो डाका डालेगा। बहन तो बहन होती है, बहन भाइयों की बड़ी फिक्र किया करती है। बहनों को घटिया न समझा करो, अगर बहनों के वजूद को तुमने घटिया समझा तो तुम में और अरब में जो जिहालत पाई जाती थी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको कुरान करीम ने नक्शा खींचा, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्था ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअज़त से पहले अरब में किसी अगर लड़की की खबर सुनी जाती थी, कोई खबर सुनता था, उसके चेहरे काले पड़ जाते थे, चेहरे उतर जाते थे, ऐसा लगता था कि कुंडलों पर मट्टी उसके ऊपर रख दी गई हो। बुजुर्गों साथियों, आज भी हमारे समाज में ये मोहल्लिक अमराज जन्म ले रहे हैं। लोग लड़कियों को बिल्कुल मनहूस समझते हैं, 2 से 3 से ज्यादा अगर लड़कियां हो जाती हैं
نوجوان ساتھی ہمارا کیا کہتا ہے، ان مولویوں کے چکر میں مت جاؤ، اگر بچے زیادہ ہوں گے کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور مسلم قوم کے نوجوانوں سنو، اگر تم اپنی اولاد کو اس غرض سے پیٹ میں مار دیتے ہو، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر تم بچوں کو مارتے ہو، انجیکشن کے ذریعے اگر بچوں کو مارتے ہو، تم اگر یہودیوں کی جو پلاننگ ہم دو ہمارے دو اسی پلاننگ کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہو، تو پھر خوب یاد رکھو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اسے کھلائیں گے، ہم اسے پلائیں گے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس ڈر سے اگر بچے کو مارو گے، اس ڈر سے اگر بچے کو پیٹ میں ہی اس کو اگر مار ڈالو گے تو خوب یاد رکھو قتل کا گناہ ملے گا، اور یہ اتنا بھیانک اتنا سنگین گناہ ملے گا۔ تم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، تم چاہے جتنے حج کر لو، تم چاہے جتنے عمرے کر لو، جتنے روزے رکھ لو، عبادتیں پوری زمین میں پھیلا دو، لیکن کوئی عبادت تمہاری کام نہیں آنے والی ہے۔ تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس سے بچوں کو پیٹ پہ قتل کرنے والوں کان کھول کر سنو، یہ تو عرب کا دستور تھا، یہ تو میرے نبی کے بعثت سے پہلے کا قانون تھا۔ ان لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹیوں کے وجود کو لعنت سمجھتے تھے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ، آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، بیٹیوں کے وجود کو لعنت سمجھتے ہو، خوب یاد رکھو ان بیٹیوں کی وجہ سے گھروں کے سسٹم چلا کرتے، ان عورتوں کے 4 درجے ہوا کرتے، 4 روپ ہوا کرتے ہیں۔ یہ عورت جب ماں بنا کرتی ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے جنت ہوا کرتی ہے، یہ بچی جب یہ بچی جب کسی کی بہن بنتی ہے تو بھائی کے لیے محبت کے پیغام لے کر آتی ہے، یہ لڑکی یہ عورت جب کسی کی بیٹی بنتی ہے تو باپ کی آنکھوں کے تارا بنا کرتی ہے، یہ لڑکی جب بیوی بنتی ہے تو ایک مرد کے زندگی کا ساتھی بنا کرتی ہے، جیون ساتھی بنا کرتی ہے، اس کی زندگی کا ہم سفر بنا کرتی ہے۔ اس لیے او نوجوانوں، عورتوں کے وجود کو منحوس سمجھنے والوں، اس تم نہیں دیتے، اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے، تم نے یہ باور کر لیا ہے کہ 2 سے زیادہ بچے ہوں گے، کون اس کی پرورش کرے گا، کون اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، تو پھر خوب یاد رکھو اس دھرتی میں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ارے رزق دینے والی ذات تمہاری نہیں ہے، کھلانے پلانے والی ذات تمہاری نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ جو کچھ زمین میں ہوتا ہے سب اللہ کے آرڈر سے ہوتا ہے، حکمرانی اللہ کی چلتی ہے، درخت سے پتا بھی گرتا تو اللہ کے حکم سے گرتا، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ انسان یہ سب کچھ کر دکھائے۔ اس لیے بزرگوں ساتھیوں، میں آپ کو بتا یہ رہا تھا یہ عرب کا دستور تھا، ہماری زندگی کا یہ دستور نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگوں ساتھیوں، روزانہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے، تم کامیاب رہو گے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی، لیکن شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ آج اپنے ایمان کو ٹٹول کے دیکھو، کس شعبے میں تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہماری نوجوان نسلوں سے میں کہتا ہوں، تمہیں سیاست کے پہاڑے اچھی طرح یاد ہیں، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ لوڈو کیسے کھیلے جاتے ہیں، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ کرکٹ میں چھکا کب لگتا ہے، چوکا کب لگتا ہے، تمہیں ساری چیزوں کا گیان ہے، علم ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں جنازے کی نماز کا علم ہے، کیا تمہیں نماز کے فرائض کا علم ہے؟ اگر میں پوچھ لوں کہ فرشتے تمہیں قبر میں کتنے سوال کریں گے اور کیا کیا سوال کریں گے، تم نہیں بتا سکتے۔ یاد رکھو جو قوم جس کام کے لیے آئی تھی، اللہ نے تمہیں کس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ تمہارے نبی عالمی نبی ہیں، عالمگیر نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے نبی کو صرف سمجھتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے نبی ہیں، تو شاید تمہیں قرآن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت پورے جہان کے لیے، دونوں جہان کے لیے، آپ ہندو کے بھی گاڈ ہیں، آپ مسلم کے بھی لارڈ ہیں، آپ کسی اور دھرم کے بھی ایشور ہیں، اسی طرح میرا بھی اللہ ہے، ایسے ہی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے نبی کے لیے فرمایا
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस तरह मेरी रुबूबियत सारे जहान के लिए, ऐसे ही मेरे नबी की रहमत सारे जहान के लिए। वो आप हिंदुओं के भी नबी हैं, आप जैनियों के भी नबी हैं, आप बुद्धिस्ट के भी नबी हैं, आप पारसी के भी नबी हैं, आप क्रिश्चियन के भी नबी हैं, आप यहूदियों के भी नबी हैं। मेरे नबी आलमी नबी हैं। हम आलमी नबी के आलमी उम्मती हैं। आलमी उम्मती होने के नाते हमारे ऊपर दो जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? हम अच्छे काम करें और अच्छे काम करने की दूसरों को दावत दें, बुरे काम से बचें और बुरे काम से बचने की दूसरों को दावत दें। आज हमने दावत का काम छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। हमारी नौजवान नस्ल दिल पे हाथ रख के बताओ तो सही, तुमने कभी गौर किया कि हमें इस मट्टी के नीचे जाना है? कभी गौर किया तुमने? जब तुम शराब की बोतल चढ़ाते हो, और याद रखो जब आदमी शराब पीता है उससे उसकी अकल छिन जाती है, उसकी अकल उस वक्त माऊफ हो जाती है। अगर यकीन न हो, मैं तुम्हें रांची का वाकया सुना रहा था कि रांची में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 22 साल की थी, उस लड़के ने जब शराब के नशे में चूर होकर घर पहुंचा, उसके बहन उसके दरवाजे पे उसकी बहन उसके दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। जो ही भाई अंदर आया, बहन ने अपने भाई को पानी पेश किया और कहा, भाईजान कहाँ आ रहे हो? इतनी देर क्यों लगी है? क्यों इतनी ताखीर से आए हो? पानी पी लो। लेकिन भाई चूंकि नशे में चूर था, शराब पीने वाला शख्स, इस हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा तलाक के जो केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो तलाक दी जाती है हालत नशा में दी जाती है। और अक्सर व बेशतर नौजवान लड़का फोन करके यही मसला पूछता है कि हजरत मुफ्ती साहब, हम अपनी बीवी को गुस्से की हालत में, हम नशे की हालत में थे, हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, क्या इसका कोई मसला है? इस मसले का कोई हल है? गुस्से में भी तलाक होती है, नशे में भी तलाक होती है। अरे बेवकूफो, अरे कमबख्त के मारो, मुझे बताओ तो सही, क्या कोई अपनी बीवी को मोहब्बत से तलाक देगा? कोई अपनी बीवी के जुल्फों को सहलाएगा, अपनी बीवी से मोहब्बत की बातें करेगा, और मोहब्बत करते करते क्या अपनी बीवी को वो कहेगा, जा मैंने तुझसे मोहब्बत की, तुम्हारे लिए हम जीने मरने की कसमें खाते, जा मैंने तुम्हें 3 तलाक दे दी? कोई कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। एक वाकया मैं ज़िम्नन और बता रहा हूं। इब्लीस का नाम आपने सुना है? इस वक्त सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इब्लीस का रोल खुद ही प्ले कर रहे हैं। इब्लीस रोजाना अपने चेले चपाटे से पूछता है, कितनों को तुमने बहकाया? अब इब्लीस चूंकि गुरु घंटाल, इब्लीस रोजाना पूछता है, जैसे एक हाकिम हो, गांव का सरपंच मुखिया हो या कोई और व्यक्ति हो, जाहिर है उसके नीचे जो काम करने वाले, वर्क करने वाले हो, तो उससे पूछता है कि आज तुमने क्या क्या किया। ऐसे ही इब्लीस रोजाना मीटिंग करता है। देखो, इब्लीस मीटिंग कर रहा है, लेकिन हम मीटिंग नहीं करते। इब्लीस मीटिंग करता है, अपने चेले चपाटों को बुलाता है, कहता है तुमने कितनों को बहकाया? अब इब्लीस के जो गुरु घंटाल चेले हुआ करते हैं, वो सब बताते हैं कि एक शख्स नमाज के लिए जा रहा था, मैंने उसको एक कामयाब दिला दिया। वो शख्स अच्छा खासा नमाज के लिए जा रहा था, अब वो नमाज की हालत को छोड़कर वो काम के लिए चला गया, मैंने उसकी नमाज छुड़वा दी। फिर इब्लीस का एक और चेला होता, वो कहता है एक शख्स रोजा रखे हुआ था, मैंने उससे कहा अच्छी खासी बिरयानी पकी है, ऐसा करो रोजा रमजान के बाद भी रख लोगे, आज पहले बिरयानी खा लो। इब्लीस कहता है कि हाँ ठीक है, तुम लोगों ने काम किया। लेकिन जब इब्लीस के चेले और दीगर काम बताते हैं, फिर पता है इब्लीस कहता है तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर कहता है कि अच्छा हजरत आप ही बता दें कि आपने कौन सा काम अंजाम दिया है, वो कौन सा काम है जिस काम की वजह से बहुत ज्यादा आप खुश होते हैं, ताकि हम भी उस काम में मेहनत किया करें। तो उस वक्त इब्लीस पता है क्या कहता है? गौर से सुनना। इब्लीस कहता है सुनो, चेले तो चेले होते हैं और गुरु तो गुरु होते हैं। याद रखो, एक घर में एक मियां बीवी दोनों मोहब्बत से रहते थे। ये भी फजर के लिए उसको पैर दबा के उठाते थे और ये भी फजर के लिए उसे पैर दबा के उठाया करते थे। इतनी मोहब्बत कायम थी। रोजाना ये लोग फजर की नमाज पढ़ते थे, बच्चों को भी नमाज के लिए उठाते थे, कुरान की तिलावत करते थे। मैंने दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़े करा दिए, इसलिए सबसे बड़ा काम ये है। अब इब्लीस के चेले चपाटे ने कहा हजरत गुरु घंटाल सबसे बड़ा काम ये कैसे हो गया? तब इब्लीस ने कहा तुम्हें पता है
اللہ کا عرش کب ہلتا ہے؟ جب کوئی دھرتی میں ایک نیک میاں بیوی آپس میں طلاق دینے کی بات کرتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، ہل اٹھتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ درخت کی ٹہنیاں کاٹ دو، درخت تو پھر بھی بڑھے گا، درخت کی شاخیں نکل آئیں گی، لیکن جب درخت کے جڑ کاٹ دو درخت مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بزرگوں، ساتھیوں، میرا بتانا مقصد یہ ہے کہ تم اکثر و بیشتر نشے کی حالت میں رہتے ہو، اور نشے کی حالت میں رہتے ہوئے بس تھوڑی سی بیوی سی چوک ہو جاتی ہے، ارے وہ تو انسان ہی ہے نا۔ تمہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا نام سنا، ایک بڑے اللہ والے کا نام ہے۔ حضرت تھانوی کے ملفوظات میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی جو بیوی تھی بہت تیز ترار تھی، بہت تیز تھی زبان سے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ میرے گھر سے کھانا لے کے آؤ، اور بھی کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ جب مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید ان کے گھر گئے، سنو، کان کھول کے سنو، یہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول اللہ کے واسطے نہ بناؤ۔ ایک بار پورا مجمع درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، ساتھیوں، میں بتا یہ رہا تھا، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو بھیجا کہ جائیں اندر سے کھانا لے کے آ جائیں۔ جب ان کے مرید جو وہاں پہنچے، ان کی بیوی نے ایسی کی تیسی اتنی اونچی نیچی باتیں سنائی کہ ارے ان پیر صاحب کو کہو کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں گے، یا دنیا کے اور بھی کام کاج ہے، دنیا کے اور تقاضے ہیں، یعنی اتنی بری اور کھری کھوٹی سنائی کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے جو مرید تھے وہ رونے لگے، اور روتے روتے اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچے اور پیر صاحب سے ساری باتیں سنائی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یاد رکھو، اگر میری بیوی زبان میں تیز ہے اور میں بھی اسی اعتبار سے زبان میں تیز ہو جاؤں گا، مجھ میں اور اس میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ عورت ویسے ہی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو زیادہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے اگر وہ زبان کی تیز ہو گئی ہے، میں صبر کر لیتا ہوں، برداشت کر لیتا ہوں، میرے محبت میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ بتاؤ، ایک اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے مریدین کی تعداد ہے، لیکن کتنا بڑا میسج دے رہے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ وہ ایک اپنے مرید کے گھر پہنچے۔ اپنے گھر میں جب مرید کے گھر پہنچے تو ان کے مریدین نے ایک دسترخوان لگوایا اور ساری چیزیں کھانے کی لگائیں۔ جس طرح آپ کے اڑیسہ میں الحمدللہ دسترخوان اتنا عمدہ رہتا ہے کہ اللہ اکبر، صحیح معنی میں ہم لوگ جب شادی کیے ہوئے تھے، یعنی سسرال جب پہلی بار گئے ہوئے تھے، میں اکثر سسرال میں یہ مثال پیش کرتا ہوں کہ ہم کو سسرال میں بھی اتنا اچھا دسترخوان نہیں ملا تھا جتنا اچھا دسترخوان کے اڑیسہ میں ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہرحال حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید نے بہت اچھا دسترخوان لگایا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دسترخوان سے اٹھا کے کھانے لگے اور تعریف کرنے لگے۔ جب تعریف بہت زیادہ کرنے لگے تو ان کی بیوی بغل میں دروازے کے آڑ میں کھڑی تھی، جب یہ تعریف سنی تو زاروں قطار رونے لگی۔ جب رونے لگی تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ میری بات اس عورت کو بری لگ گئی اس لیے رونے لگی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اور اللہ کی تعریف کری اور اس عورت کے حق میں دعا دی کہ بہت اچھا کھانا پکائی ہے، اللہ اس عورت کو جزائے خیر دے، اللہ اس عورت کو دین کا داعیہ، دین کا سپاہیہ بنائے۔ جب یہ دعائیں اور ملنے لگی تو وہ عورت اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک بات آئی کہ اچھا ایسا کیا جائے کہ پردے کے آڑ میں اس کو بلایا جائے۔ جب پردے کے آڑ میں بلایا گیا، پتہ ہے اس عورت نے کہا کہ حضرت، ہم آپ کی دعا سے نہیں رو رہے تھے بلکہ ہم اس لیے رو رہے تھے جو میرا پتی ہے، جو میرا شوہر ہے، جو میرا زندگی کا جیون ساتھی ہے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کری ہے، ہر وقت میں اس کے لیے ہمہ وقت اس کی خدمت میں تیار رہتا ہوں۔ وہ ہم کو ایک بار آواز دیتا میں دوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ یقین جانو، آپ نے تو میری تعریف اتنی کری، جب تک آپ کھانا کھا رہے تھے اس وقت تک ہر ایک لقمہ پہ ایک بار اللہ کی تعریف، تو ایک بار مجھ کو آپ نے دعا دی، لیکن ایک میرا شوہر ہے جس نے آج تک میری کبھی تعریف نہیں کری، بلکہ نمک کم ہو جاتا اس کے لیے مجھ کو وہ مارتا ہے، اس کے لیے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور اپنے مرید کو انہوں نے قریب بلایا اور کہا، یاد رکھو، جس کا معاملہ گھر میں اچھا نہیں اس
اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں. گھر میں اچھا معاملہ کیا کرو, بیوی کی تعریف کیا کرو. تمہاری بیوی کو تمہاری تعریف اچھی لگتی ہے, تم بیوی کی ضرور بھی ضرور تعریف کیا کرو. پھر اپنے مرید کو انہوں نے نصیحت کی ہے کہ یاد رکھو, جب بیویوں کی تعریف کری جاتی ہے تو بیوی تمہاری خدمت میں اور زیادہ لگ جاتی ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتی ہے. اور یہ ادا تمہارے اور میاں بیوی کے درمیان کی جو محبت ہوتی ہے, عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا سونا جاگنا سب عبادت میں تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اے کاش ہمارے گھر کا بھی ماحول ایسا ہو جاتا. ہم کتنی دفعہ اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں. ایک آدھ نوجوان اگر اللہ سے ڈر کے کبھی کرتا بھی ہے تو اس کی ماں کہہ دیتی ہے کہ اچھا ایسا لگتا ہے کہ تم بیوی کا جوڑو ہو, بیوی کا غلام ہو گئے ہو, جوڑو کا غلام ہو گئے ہو. ایسی بات نہ کہا کریں. سماج کو بہتر سماج بنائیں. بزرگوں ساتھیوں میں بتا یہ رہا تھا, اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی سر بلند رہوگے ان کنتم مومنین, شرط ہے کہ تم مومن ہو جاؤ, ایمان والے ہو جاؤ. ہر شعبے میں تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے. داڑھی تم نہیں رکھتے, نشے کے عادی تم ہو چکے ہو, ہر طرح کی برائیاں تم میں پائی جاتی, ماں باپ کی نافرمانی تم کرتے ہو, ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی, اس کے ذمہ دار بھی تم ہو. شاید تمہیں نہیں پتا ہے, جمعیت علماء ہند کی رپورٹ بتاتی ہے, مسلم پرسنل لا کی رپورٹ, امارت شریعہ میں حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب جو نائب ناظم امارت شریعہ ہیں, نائب امیر شریعت ہیں, حضرت مولانا نے کتاب لکھی ہے بیٹیوں کی حفاظت کیجئے. اس کتاب میں حضرت مولانا نے حضرت مولانا محفوظ عمرین صاحب جو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں, ان دونوں نے مل کر ایک رپورٹ تیار کری ہے. وہ رپورٹ سنو تتوا والو, اور کان کھول کر سنو. اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو. جہاں جہاں سے جن دروازوں سے برائیاں پنپ رہی ہیں, برائیاں جنم لے رہی ہیں, ان دروازوں کو بند کرو. خوب یاد رکھو, اگر تم جلسے سن لیے, جلسے کرا لیے, لیکن زندگیاں نہیں بدلی, زندگیوں میں انقلاب نہیں آئے, تمہاری بستیاں نہیں بدلی, تمہاری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوئی, نوجوانوں نے داڑھی رکھنا نہیں شروع کیا, نوجوانوں کے سر سے پیر تک اگر محمد الرسول اللہ کی سنت, آپ کی صورت, آپ کی سیرت اگر نہیں آئی تو یہ جلسے کامیاب نہیں قرار دیے جا سکتے. کوئی شاعر آئے, کوئی مولوی, کوئی مقرر آئے اور فیس بک میں لکھ دے کہ الحمدللہ میں کرتوا گیا تھا, میرا جلسہ بہت کامیاب رہا, لوگوں نے خوب دعائیں دی. ارے کیسی دعائیں دی؟ 2-4 نوٹ کی بارش کر دی گئی, ہو گئی دعائیں, ہو گیا جلسہ کامیاب, ہو گئے جلسے میں تمہیں ہیرو قرار دے دیے گئے. نہیں, جلسہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا, کامیابی کی ضمانت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ یہ گاؤں والے عہد نہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ جو جلسہ ہوا ہے اور اس جلسے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اگر عمل کریں گے تو یہ جلسہ کامیاب ہے. ورنہ یاد رکھو, لذت سماعت کی خاطر, کان کے لذت کے خاطر اگر تم نے تقریریں سنی, نعتیں سنی, تو خوب یاد رکھو سننے کے سوا تمہیں کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوگا. ایسے ہی سمجھو جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ رکھیں گے, جو راتوں میں جگیں گے, عبادت تو کریں گے لیکن راتوں میں جگنے کے سوا اسے کچھ نہیں ملنا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان کے 30 روزہ رکھیں گے لیکن سوائے بھوکا رہنے کے اسے کچھ نہیں ملے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ پوچھا گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے جو پورے دن روزہ رکھیں گے, بھوکا رہیں گے لیکن ان کا روزہ نہیں قبول کیا جائے گا, انہیں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو سحری کر لیں گے اور افطار کر لیں گے لیکن اس بیچ جو اسے عمل کرنا چاہیے, یعنی کان کا روزہ رکھنا چاہیے, آنکھ کا روزہ رکھنا چاہیے, زبان کا روزہ رکھنا چاہیے, دل کا روزہ رکھنا چاہیے, دماغ کا روزہ رکھنا چاہیے, ہاتھ کا روزہ رکھنا چاہیے, پیر کا روزہ رکھنا چاہیے. یہ تمام اعضاء کے ساتھ روزہ نہیں رکھیں گے. ایسے ہی لوگ ہوں گے جو صرف بھوکا رہیں گے, اسے بھوکے رہنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا. خوب یاد رکھو, رمضان قریب ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں ہمیں جن کاموں سے بچنا چاہیے اگر ہم ان کاموں سے نہیں بچیں گے, روزہ رکھتے ہو, تم دکاندار ہو, کاشتکار ہو یا ٹھیلا لگاتے ہو, کچھ بھی کرو لیکن یاد رکھو حالت روزہ میں تمہیں اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا پڑے گی. تم نے روزہ رکھا لیکن نوجوان لڑکیاں سڑکوں سے گزر رہی تھی, تمہاری آنکھیں غلط دیکھی, العیان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلك او یکذب. تم کیا سمجھ
समझते हो जब शर्मगाह से मिलता है तभी गुनाह होता है, तभी ज़िना होता है? नहीं नहीं, उससे पहले हमारी आंखें ज़िना करती हैं, हमारी आंखें गलत देखती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब आंखें गलत देखती हैं तो दिल में गलत ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं, और जब दिल में गलत ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं, आंख भी ज़िनाकार हो गई, मेरा दिल भी ज़िनाकार हुआ। फिर उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत ईमान होता है तो तुम अपने शर्मगाह को बचा लेते हो, अगर ईमान उतना भी नहीं होता है तो तुम मिलने की तैयारी करते हो, उससे नंबर हासिल करते हो। ओ हव्वा की बेटियों, ओ फातिमा की कनीज़ों, सुनो, कान खोल कर सुन लो, इस नाजुक दौर में तुम्हारी इज्जतें लूटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और तुम हो कि नंगा लिबास पहनती हो, तुम हो कि टाइट लिबास पहनती हो, तुम हो कि बारीक लिबास पहनती हो, तुम हो कि जालीदार कपड़ा पहनती हो। रमजान नहीं आया, ईद नहीं आई, उससे पहले ही कलकत्ता के मार्केट जाके देखो, उससे पहले ही मुंबई जाके देखो, दिल्ली जाके देखो, बड़ी बड़ी मंडियों में मुस्लिम नौजवान लड़कियों के लिए कैसे कैसे कपड़े तैयार हो रहे, 3 तरह के कपड़े तैयार हो रहे। यहूदियों को पता है कि इनके नबी की तालीम है कि 3 तरह का कपड़ा पहनना, उससे बेहतर था कि नंगी रहे। वो 3 तरह का कपड़ा कौन? 3 तरह का कपड़ा, 3 तरह का कपड़ा याद रखो नौजवानों, मैंने हदीस पढ़ी है, तुम बाप हो, तुम भाई हो, तुम शौहर हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें रोकना पड़ेगा, ऐसे कपड़े तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम दिए हो, सबसे पहले तुम्हारी कुटाई होगी, सबसे पहले तुम्हारी खैरियत दी जाएगी। 3 तरह के कपड़े याद रखो, ऐसा कपड़ा जो जिस्म में बहुत ज्यादा फिटिंग आता हो। लड़कियां इतनी फिटिंग कपड़ा पहनती हैं, हमारे और आपके जिस्म को देखो, मौलाना साहब को देखो, किस तरह ढीला ढाला पैरहन पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं दिखता। लेकिन हव्वा की बेटियों को देखो, फातिमा नाम रखने वाली फातिमा की कनीज़ाओं को देखो, आयशा की बेटियों को तो देखो, ये इतना टाइट कपड़ा पहनती है कि जिस्म का अंग अंग नजर आने लगता है, जिस्म का एक एक हिस्सा उभर के नजर आने लगता है, नशेब व फराज का अंदाजा होने लगता है। ऐसा कपड़ा पहनाना। दूसरे नंबर पे मेरे नबी ने फरमाया, ऐसा कपड़ा पहनाना जो जालीदार हो, जैसे मार्केट में आजकल क्रॉप टॉप आ रहा है, एक क्रॉप टॉप आ रहा है, और इसी तरह शादी के मौके पे तुम देखते होगे कि लड़कियां सैंडल पहनती हैं, लंबी लंबी हील वाली सैंडल पहनती हैं, इसी तरह से लहंगा पहनती हैं। ये लहंगा इधर को उधर होता है, और उसके ऊपर एक ब्लाउज पहना जाता है, उसमें भी काम होते हैं। लड़कियां लहंगे को उठा के चलती हैं, पैर भी दिखता है, शर्मगाह भी दिखती है, ज़ेरे नाप भी दिखता है। ये नौजवान लड़का अपनी आंखों के जरिए ज़िना करता है। कौन है जिम्मेदार? इस समाज को बिगाड़ने में किसका रोल है? कौन है जिम्मेदार? तुम हाथ उठा के बताओ, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, तकवा वालों और इतराफ अकनाफ से आए हुए मेरे कलमा शरीफ भाइयों, इस समाज को बिगाड़ने में किसका रोल है? कौन है इसके जिम्मेदार? क्यों हुकूमत को बुरा भला कहते हो? क्यों किसी को गालियां देते हो? हुकूमत को बुरा भला मत कहो, हुकूमत को गालियां मत दो, अपने दामन में झांक कर देखो, तुम बिगड़ चुके, तुम्हारी बच्चियां बिगड़ चुकी। क्यों ये इत्तेदाद की आंधियां क्यों इस कदर बढ़ रही हैं कि सिर्फ 2022 की रिपोर्ट बताई गई कि 2022 में 12 महीने होते, एक साल में 12 महीने की मुद्दत में 4.5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अपनाया है, जैन धर्म अपनाया है। किसकी जिम्मेदारी थी? कौन इसके जिम्मेदार है? हम हैं इसके जिम्मेदार मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम हैं इसके। हमने कभी हुकूमत को बुरा भला नहीं कहा। क्यों कहें साहब? क्या हुकूमत बुर्के पे पाबंदी लगाती है? क्या हुकूमत आपको कहती है कि आप दाढ़ी न रखो? नहीं कहती है साहब। मेरे कई मामू अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दाढ़ी रख के नौकरी करते। हम खुद ही दाढ़ी को बिल्कुल बुरा समझते हैं। और तो और कुछ नौजवान इतने बेहुदा किस्म के होते हैं जो कोई दाढ़ी रखता है, कुछ नौजवान लड़कियां भी इतनी बेहुदा होती है। गरम दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। शुक्रिया भाई। जो उलमाए किराम बाहर खड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है अरकान जलसा की तरफ से कि आप स्टेज पे आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मकामी लोग अगर किराम में से नहीं है, आ जाए माशाअल्लाह, हमारे सरों पे आ जाओ, आ जाइए। बुजुर्गों, साथियों, मैं बहुत बड़ा हसास मसला आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये रिपोर्ट दर्शाती है
اس کے ذمہ دار کون؟ تمہیں پتا ہے آج لڑکیوں نے ننگی فلمیں دیکھتے دیکھتے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات انہوں نے کتاب لکھی ہے، موقع ملے تو مکتبہ احسان ندوے سے وہ کتاب چھپی ہے، اس کتاب کو ذرا پڑھنا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، حضرت پیر ذوالفقار نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات بہت قیمتی اور مزے کی لکھی ہے کہ یہودیوں کی پلاننگ کے تحت خبر پتا ہے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کو کوئی بندہ جاتا ہے اسے دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنے بیہودہ ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ گھر میں کوئی نہیں۔ واہ صاحب، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ اگر آئیں تو تم بہانہ کر لو، لیکن تم ہو کہ تم اپنے گھروں میں فلمی اڈے قائم کرتے ہو، بڑا سا بالکل اسکرین لگا دیتے ہو، LCD لگا دیتے ہو، تمہاری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ برائیاں پنپ نہیں، برائیاں اگر جنم نہیں لیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سماج کی لڑکیاں اگر نہیں بگڑیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں پتا ہے اس کو ایسے اتنی بری طرح سے حضرت پیر ذوالفقار نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی سازش بہت دنوں سے تھی، چونکہ یہودی بہت ساری تحریف قرآن میں کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مسلمانوں کے بچے بچے حافظ قرآن ہوا کرتے، حافظ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں قرآن کی تحریف کر رہے ہو، قرآن میں یہ آیت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہودی اس میں بالکل وہ اپنے ناپاک عمل اور ناپاک سازش میں ناکام ہوتا چلا گیا، لیکن یہودیوں کی یہ جو ایک سازش ہے یعنی LCD کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، تمہیں پتا ہے اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو رہا ہے، بہت حد تک کامیاب ہو رہا ہے۔ LCD لگی ہے، اس میں گندی گندی تصویریں آ رہی ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، جوان بیٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ تمہیں پتا ہے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، آپ کے صدقے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ آپ اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازے سے آواز آتی من طق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ ادھر سے خبر جاتی میں محمد رسول اللہ تمہارے والد ماجد ہوں، بیٹیا دروازہ کھول دو۔ میرے نبی کا یہ فرمانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ ابو جان پہلے اپنی چادر پھینک دیجئے۔ جب اپنی چادر پھینکی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا کے جسم پہ جو لباس اس دن تھا، سنو ہوا کی بیٹیوں، سنو فاطمہ کے نام پہ دم بھرنے والی لڑکیوں، سنو تم فاطمہ اور عائشہ نام رکھتی ہو، لیکن فاطمہ کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتی، اپنی زندگی کا آئیڈیل نہیں سمجھتی۔ تم فاطمہ نام تو رکھتی ہو، لیکن تمہیں تسلیمہ نسرین پسند، تمہیں کیٹرینہ کیف پسند، تمہیں کرینہ کپور کے ڈریس پسند، تمہیں شرم نہیں آتی کیوں مسلمانوں کے نام رکھ کر اپنا شبیہ خراب کرتی ہو، اسلام کو بدنما داغ کی طرف دھکیل رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ سنو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، فرماتی ہے کہ ابو جان اپنی چادر دے دیجئے، آج تمہاری بیٹی کے جسم پہ جو لباس ہے جو کپڑا ہے اس میں 72 پیبند لگے ہوئے ہیں، اگر چادر نہیں پھینکو گی، چادر نہیں پھینکو گے تو میں پورے طور پہ پردہ نہیں کر پاؤں گی۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ باپ کو بھی چاہیے، بیٹی کو چاہیے کہ باپ سے بھی پردہ کریں۔ بتاؤ وہاں کیسی تعلیمات دی جا رہی ہے؟ باپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہ بھی باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں، پورا مطلب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ ایسا کرو، تمہارے والد ماجد کائنات کا سردار تو ہوں، لیکن غریبی کی حالت یہ ہے کہ تمہارے والد ماجد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے درخت کے پتے کھا کھا کے دن گزارے جا رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی یہی فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی بھی حالت یہی کہ 2 دن سے فاقے کٹ رہے ہیں، میں تو حسن اور حسین کو تسلی کے لیے ہانڈی پہ پانی رکھی ہوئی ہوں، پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے، حضرت حسن اور حسین کو صرف تسلی دی جاتی ہے، باپ بھی بھوکے ہیں، بیٹی بھی بھوکے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیوں؟ بتاؤ تو صحیح کیوں؟ جبکہ دنیا آپ کے صدقے اللہ نے بنائی ہے، آپ چاہتے تو دنیا کی ساری اچھی چیزیں آپ کے قدم میں ہوتی، لیکن آپ نے دنیا میں جائیداد کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے دنیا میں عیش و آرام کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ غریبوں پہ غربت میں زندگی کاٹی، امت کو تعلیم دی کہ غریبی بری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ने हजरत फातिमा को फरमाया कि फातिमा मुसल्ला बिछाओ। हजरत फातिमा मुसल्ला बिछाती हैं, आप फरमाते हैं 2 रकात नमाज पढ़ो, आप 2 रकात नमाज पढ़ती हैं, फिर आप फरमाते हैं मुसल्ला उठाओ। हजरत फातिमा मुसल्ला उठाती हैं, देखती क्या है कि मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात लदे हुए। आप फरमाते हैं फातिमा जितनी तबीयत चाहे उतना उठा लो। हजरत फातिमा उस मौके पर जो फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आकाश हवा की बेटियां इस बात को समझ लेती, फातिमा की कनीजाएं इस बात को समझ लेती। हजरत फातिमा फरमाती हैं अब्बू जान, अगर इन हीरे जवाहरात सोने चांदी में से कुछ भी मैं उठा लूंगी, क्या अल्लाह के यहाँ मुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा? मेरे नबी के आंसू मुबारक छलक पड़ते हैं। आप फरमाते हैं कि बिटिया एक एक चीज का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह की अदालत बहुत सख्त है। अल्लाह वल वज़्न यौमइदिन क़िस्त, अल्लाह के यहाँ बराबर नापा तौला जाएगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तो तुम अगर जाते हो पुलिस कमिश्नरी से तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तुम घूस दे देते हो, इंटरेस्ट की रकम देते हो, केस को इधर से उधर कर देते हो, इसकी फाइल वहां उसकी फाइल वहां, हर तरह के हेरा फेरी कर लेते हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह फरमाता है मेरा जो मीज़ान होगा वो बिल्कुल हक पर होगा। कोई राय के दाने के बराबर भी अच्छा करेगा, अल्लाह उसे भी दिखाएगा, और कोई राय के दाने के बराबर भी बुरा करेगा, अल्लाह उसे भी उसको दिखाएगा। हजरत फातिमा जब ये सुनती हैं तो हजरत फातिमा फरमाती हैं अब्बू जान, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिस दौलत के उठाने की वजह से मुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़े। मैं फातिमातुज़ ज़हरा ऐसी दौलत को ठुकराती हूँ, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। आज तुम्हारी माँ हमारी माँ, आज तुम्हारी बेटियों हमारी बेटियों के पास कितने जोड़े हैं, ईद के जोड़े अलग होते हैं। अगर वो एक जोड़ा कपड़ा खरीदती है, उसी से मैचिंग करते हुए जूती खरीदती है, हाथ की चूड़ियां भी खरीदती है, और तो और उसी हिसाब से वो होठ में लिपस्टिक भी लगाती है। कपड़े का कलर जैसा वैसे ही लिपस्टिक के कलर होना चाहिए। ओ मेरी बहनों, ओ हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की कलीजाओं, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है, क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि तुम जिस चेहरे को इतना संवारती हो, तुम जिस जिस्म में कपड़ा पहनकर मटक मटक कर चलती हो, उस जिस्म को कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े खाएंगे। तुम जिस गाल को लेकर, तुम जिस बाल को लेकर एक बार नहीं 2 बार नहीं, दिन में 10-10 बार 20-20 बार आईना देखती हो, वो बाल तो सिर्फ 30 दिन के अंदर झड़ने लगेंगे। जिस पेट की वजह से, जिस पेट को तुम दिखाती हो, तुम्हारे नाक का हिस्सा दिखता है, वो पेट तो सिर्फ 28 दिन के अंदर फट जाएगा, और फटने के बाद पूरे कब्र में उसकी गंदगी फैल जाएगी। क्यों इस जिस्म को लेकर इतरा रही हो, क्यों इस जिस्म को लेकर इतने दावत दे रही हो, हुस्न की दावत देती हो, गुनाहों की दावत देती हो। मेरी माँ बहनों, अगर तुम पर्दे के आड़ में सुन रही हो तो तुम्हें इस बात को सोचना पड़ेगा, अगर ये जिंदगी हमेशा की होती तो फिर तुम जैसे चाहते वैसी जिंदगी गुजार लेते। लेकिन मौत का कोई वक्त मुकर्ररा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। अभी हम कल रात पहुंचे थे, एक मैयत हुई थी, सिर्फ 19 साल का एक लड़का है, 19 साल का एक लड़का। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो आपके उड़ीसा के हैं, जो शेर उड़ीसा कहे जाते थे, जो जेल के सलाखों में हैं आज, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला उन्हें बाइज्जत रिहाई नसीब फरमाए। उस गांव का एक लड़का गालिबन है, 19 साल की सिर्फ उम्र थी। वो लड़का एक बाग गया था कोई काम करने के लिए, सांप ने डस मारा, सांप के डस मारने की वजह से वो लड़का 2 घंटे के बाद इंतकाल कर गया, मौत वाक़ई हो गई। उस बाप के पास एक लड़की थी, एक लड़का था, लड़की दुबई में नौकरी करती थी, एक लड़का था, वो लड़का 19 साल का था। बताओ उस बाप के दिल पे क्या बीता होगा, क्या बीता होगा। वो नौजवान लड़का जो 19 साल की उम्र का था, उसने कभी दिल में सोचा होगा कि इस उम्र में मुझे मौत आएगी? अभी तो उसके कितने सपने रहे होंगे, अभी तो वो सोचा होगा कि हम बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, घर बार बनाएंगे, सुनहरे ख्वाब उसने अपने दिलों में सजाए होंगे। लेकिन बुजुर्गों, साथियों, खूब याद रखो, धरती का यही निजाम है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त मुकर्रर हो जाता है तो फिर किसी को 1 सेकंड आगे न 1 सेकंड पीछे इस बात की मोहलत नहीं होती है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, अक्लमंद वो नहीं जो दुनिया में बंगले बना ले, जायदाद इकट्ठा कर ले, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद ले, खूब ज्यादा ऐशो इशरत की जिंदगी हासिल करे, बल्कि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे।
कितने लोगों के पास तैयारी है नौजवानों? कितने लोगों के पास तैयारी है? नहीं है तैयारी। एक पैर कब्र में रख चुके फिर भी दाढ़ी फ्रेंची कट कटाते हो। ओ नौजवानों, दाढ़ी भी नहीं रखते, दाढ़ी का मजाक भी उड़ाते हो। ओ अब्बा की बेटी, आजकल तुम्हारे यहाँ से ये खबर गर्दिश कर रही है कि जिन लड़कों के दाढ़ी होते हैं उन लड़कों के यहाँ पैगाम, उन लड़कों के जरिए अगर पैगाम जाता है तुम पैगाम ठुकरा देती हो। खूब याद रखो, हरियाणा का एक वाकया, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिन्होंने एक बहुत अच्छी तफसीर माजिदी लिखी है, उन्होंने एक वाकया दर्ज किया है। खूब याद रखो, हरियाणा में एक लड़की ऐसी ही थी जो दाढ़ी से बहुत ज्यादा घिन करती थी, दाढ़ी को नफरत करती थी, दाढ़ी वाले लड़के से नफरत करती थी। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन उस लड़की की शादी हुई थी, एक IPS अधिकारी से उसकी शादी तय पाई। जिस दिन शादी तय पाई, वो लड़की हम बिस्तरी के लिए, सुहागरात बनाने के लिए लड़के के पास जोई जाती है। तुम्हें शायद पता नहीं हो, एक इतनी चीख भरी आवाज लड़की की जुबान से आई कि लड़का वहीं पर बेहोश गिर पड़ा और लड़की भी वहीं पर बेहोश गिर पड़ी। उसके बाद लोग भागते भागते आए, देखा कि लड़की भी इंतकाल कर गई और उसकी शक्ल बंदर से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। बुजुर्गों साथियों, तुम क्या समझते हो? एक मसला मैं बता रहा हूं, अगर दाढ़ी नहीं रखते हो, दाढ़ी नहीं रखते हो, सुबह शाम तौबा किया करो कि मैं अपने नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे नहीं सजा रहा। अगर तौबा करते हो तो ईमान बचा हुआ, ना रखने का गुनाह मिलेगा, आपके मसाइल और उनका हल पड़ लेगा। लेकिन कोई नौजवान अगर दाढ़ी भी नहीं रखता है और वो तौबा भी नहीं कर रहा तो उसको दाढ़ी न रखने का भी गुनाह मिलेगा और तौबा न करने का भी गुनाह मिलेगा। और एक वो शख्स है, अब कान के सुनो, एक वो शख्स है जो दाढ़ी भी नहीं रख रहा है और दाढ़ी का मजाक भी उड़ा रहा है। ऐसे मौके पर मेरे नबी ने फरमाया और हजरत ने उस हदीस को यहाँ पे कोट किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। यानी ऐसा नौजवान जिसने दाढ़ी भी नहीं रखा और दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाया, मौलवियों को, हाफिजों को ताना दिया, ऐसा नौजवान शख्स यहूदियों की मौत मरेगा। उसकी शक्ल बंदर और खिंजीर और सूअर से भी बदतर हो जाएगी। इसलिए खूब याद रखो, दाढ़ी के मजाक मत उड़ाया करो। रखोगे सारे साथी दाढ़ी इंशाअल्लाह? बुजुर्गों साथियों, मैं 3 तरह के लिबास बता रहा था आपको। मैंने 2 लिबास आपके सामने बताए। नंबर 1, बिल्कुल टाइट लिबास पहनाओगे अपनी बच्चियों को। क्यों नहीं पहनाओगे? ईद में तो कपड़े तैयार हो रहे हैं साहब। मटिया बुरुज में एक मेरे मुस्लिम भाई है, मैंने उनसे कहा क्यों ऐसे फैशनेबल कपड़े तैयार कर रहे हो? तुम तैयार करने वालों की भी खैरियत दी जाएगी। उन्होंने कहा हजरत मार्केट में यही डिमांड रहता है। हमने कहा मार्केट का डिमांड मत याद रखा करो, कभी आखिरत का भी डिमांड याद रखा करो। याद रखो, हजरत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कुरान करीम की एक आयत है कि जमीन से खलफशार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इंसान के अंदर 5 बातें न पाई जाए। वो 5 बातें क्या है? नंबर 1, आदमी के अंदर से आखिरत की फिक्र। जो आखिरत की फिक्र इंसान में नहीं पाई जाती। किसी इंसान को इस बात की फिक्र होती मरना है, आखिरत में अल्लाह के यहाँ मुझे मुंह दिखाना, क्या फैसले होंगे, किसी को नहीं है। किसी को इस बात की खबर नहीं। खबर होती है बूढ़ा हो गया, एक पैर कब्र में रख चुका है, उसके बावजूद फिक्र है तो सिर्फ बच्चे की फिक्र है। मेरा बेटा कैसे तरक्की करेगा, मेरा बेटा कैसे अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी पोस्ट हासिल करेगा, अच्छी डिग्री। लेकिन कभी इस बूढ़े बाप को जो एक पैर कब्र में रख चुका, दाढ़ियों के बाल सफेद हो चुके, मौत के असरात मुरत्तिब नजर आ रहे, लेकिन कभी इस बात की फिक्र सताई मर जाएंगे, कुंडलों पर मट्टी रख दी जाएगी, पता नहीं कब्र में मेरा कोई पुरसाने हाल न होगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे। तुम्हें शायद पता नहीं हो, जब नेक रूहें इस दुनिया से जाया करती हैं तो फिर मिट्टी भी उसे वेलकम किया करती है, इस्तकबाल किया करती है। मट्टी बिल्कुल तहत निगाह कुशादा हो जाया करती, कब्र चौड़ी हो जाया करती है, कब्र खूबसूरत हो जाया करती है। लेकिन जब कोई मनहूस, पापी, शराबी, जुआरी, सट्टाबाज इस दुनिया से जाता है, जब कोई जालिम और जाबिर जाता है, तुम्हें पता है सबसे पहले इस मट्टी, ये मट्टी उससे बददुआ ले, ये मट्टी उससे बदला लेती है। कब्र इतनी उस पर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसली उधर को घुस जाती, उधर की पसली इधर को घुस जाया करती है। फिर अस्तहे मुसल्लत किए जाते हैं। एक अस्तहा इतना फूंक मारता है, इतना कड़वा फूंक होता है, 70 हाथ जमीन को धस जाता है, तुम्हें पता नहीं हो। फिर मारा जाता,
फिर खिलाया जाता। कुरान करीम की आयत पढ़ो, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। सबसे ज्यादा इंसान को तकलीफ कब पहुंचती है? गोश्त काट दिए जाए तकलीफ नहीं पहुंचती, हड्डी तोड़ दिए जाए इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती है, लेकिन अगर किसी की खाल नोची जाए, किसी की खाल नोची जाए, इसलिए हजरात सहाबाए किराम की तारीख पढ़ोगे, हजरात उलमाए किराम की तारीख पढ़ोगे, सबसे ज्यादा उन्हें किस बात की सजा दी जाती थी? खाल नोची जाती थी, उसके बाद उस पर नमक रख दिया जाता था, इतनी तकलीफें दी जाती थी। कुरान ने कहा सबसे ज्यादा जब खाल नोची जाती है उस वक्त उसे बहुत तकलीफ होती है। कुरान ने उसी को तज़किरा किया है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। कुरान कहता है उसकी खाल नोची जाएगी, फिर खाल दी जाएगी और कहा जाएगा चखले मजा, चखले मजा। तूने धरती में अकड़ अकड़ के चला है, जमीन पे अकड़ अकड़ के चला है, तुम चौक चौराहे पे बैठकर लड़कियों की इज्जत पे खिलवाड़ करते थे, लड़कियों की इज्जत पे निशाना बनाते थे, तुम शराब की बोतलें चढ़ाते थे, तुम प्रीमियर लेवल लगाकर फला टीम लगाते थे, 2.5 लाख का 2.5 करोड़ का सपना देखते थे। और प्रीमियर लेवल लगाने वालों कान खोल कर सुन लो, तुम सपना तो सजाए हो सही, लेकिन अल्लामा इकबाल ने हदीस को शेरी जाविये में किस तरह पहनाया कि सूद की हुर्मत साबित है, लारैब किताबों सुन्नत से हक ने खिताब आम किया। यूं देखो सारी उम्मत से सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 ज़िना से बढ़कर है, सूद है नजिस आइन सुनो ये सूवर से भी बदतर है, सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 ज़िना से बढ़कर है, सूद है नजिस आइन सुनो ये सूवर से भी बदतर है। सूद का एक दिरहम सुनो अपनी माँ से 36 बार ज़िना करने के बराबर गुनाह है। कौन ऐसा नौजवान इस समाज का बेहुदा नौजवान होगा जो अपनी माँ के साथ 36 बार मुंह काला करेगा? है कोई तत्वा का नौजवान? है कोई मेरा मुसलमान इधर उधर से आए हुआ? कोई नहीं है ना? फिर अगर नहीं हो तो क्यों ड्रीम लेवल लगाते हो? क्यों लोडो में अपना टाइम पास करते हो? 100 रुपए 200 रुपए लगाकर क्यों अपना वक्त को जाया करते हो? क्यों माले हराम को अपनी जिंदगी का महवर बनाते हो? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है, अगर किसी कपड़े में 99 रुपए हलाल के हो, 1 रुपए हराम के हो और उस कपड़े से तुम नमाज पढ़ो, उस कपड़े से अगर तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसीलिए कहा गया है बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन नमाज उसकी जिंदगियों में नहीं उतरती। जबकि नमाज के बारे में इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज भी पढ़ता है चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है पड़ोसी का हक भी दबाता है, नमाज भी पढ़ता है माँ बाप को बुरा भला भी कहता है, माँ बाप को गाली गलौज भी करता है, नमाज भी पढ़ता है लड़कियों की इज्जत भी ताड़ता है, नमाज भी पढ़ता है बैंड रेडियो को नंगा भी करता है। इसकी नमाज तो चाहिए थी कि सारी बुराइयों से इसे रोक दे, क्योंकि कुरान कहता बेशक नमाज सारी बुराइयों से रोकती है, सारी बेहयाइयों से रोकती है। फिर हमारी नमाजें हमें बुराइयों से क्यों नहीं रुकवा पाती? हमारी नमाजें हमें चोरी से क्यों नहीं रोक पाती? इसलिए क्योंकि कुरान ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। खूब याद रखो ऐसी नमाज जिस नमाज के जरिए से कम का दर्जा बताया गया है। आप अल्लाह को देख रहे हो, अगर ये कैफियत तारी नहीं हुई है, तुम्हारी नमाज खुशू वाली नहीं, तुम्हारी नमाज हमारी नमाज कैसी है? नमाज पढ़ते हो दिन भर का सारा भूली बातें, दिन भर की सारी भूली बातें, दिन भर के सारे काम काज नमाज में याद आ जाते हैं। बताओ होता कि नहीं होता? ऐसी नमाजें हैं, इसलिए नमाजों के असरात हमारी जिंदगियों पे नहीं है। बुजुर्गों साथियों कान खोल कर सुनो, अपनी नमाज को बेहतर बनाओ, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। और ड्रीम इलेवन लगाने वाले लड़कों, 40 करोड़ का सपना देखने वालों, 2 करोड़ 2.5 करोड़ का सपना देखने वालों, इस सपने को तार तार करो। अल्लाह ने जितनी मुकद्दर में तुम्हारी लिखी है उतना ही पाओगे, उससे ज्यादा नहीं पा सकते। ड्रीम इलेवन के सपने से निकलो, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत पर, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से यारी करो। क्या तुम्हारे पास सहाबाए किराम की तारीख नहीं है? अरे बिलाल हबशी चाहते तो सारी दौलत इकट्ठा कर लेते, लेकिन बिलाल हबशी हजरत सुमैया पर कुर्बान जाओ। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इतनी तकलीफें दी गई, अबू जहल ने कहा था सुमैया कहो अब भी अल्लाह एक नहीं है, कहो अब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं है, सच्चे नबी नहीं है। लेकिन हजरत सुमैया ने कहा क्या कहते हो, कैसी बात करते हो, अपनी जुबान से खिलाफ
इजाजत बख्ते हो। आज कोई हमारे ऊपर थोड़ी बहुत भी अगर कोई थोड़ा बहुत भी जुल्म करता है, हम फौरन ईमान का सौदा कर बैठते। और तो और अगर कोई कुछ टॉर्चर भी नहीं करता, सिर्फ 2-4 लाख रुपए अगर झांसे देता है, ईमान का सौदा कर बैठते हो। लेकिन पाओ हजरत सुमैया की तारीफ, हजरत सुमैया ने कहा, हजरत जिन्नीरा की तारीफ पढ़ो। हजरत जिन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी तकलीफें दी गई, इतनी तकलीफें दी गई कि आंख की रोशनी भी जाया हो गई, खत्म हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा गया था, जाओ अबू बकर सिद्दीक जिन्नीरा को आजाद कर दो। जिन्नीरा गुलाम है बूझल की, वो बहुत तकलीफ देता है जिन्नीरा को, जिन्नीरा को आजाद करो। जिन्नीरा को आजाद करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक गए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे कलमा को भाइयों, उस वक्त पता है अबू जहल ने जिन्नीरा की बड़ी कीमत लगाई थी, बहुत मोटी रकम मांगी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक दोबारा आ गए, घर आ गए, आप सल्लल्लाहु से तज़किरा फरमाया। उसके बाद जिन्नीरा से कहा गया कि जिन्नीरा बताओ अभी भी कैसे लोग किसरा को तुम नहीं मानते कि ये भगवान है, ये देवता है, यही मेरे काम काज करते हैं, चांद सितारे सूरज को अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना गॉड, अपना लॉर्ड, अपना अल्लाह नहीं मानते। हजरत जिन्नीरा ने कहा क्या समझते हो तुम, जिन्नीरा को तकलीफ दिए हो। जिन्नीरा की आंखों की रोशनी चली गई, हजरत जिन्नीरा का तमस्खरा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। हजरत जिन्नीरा ने कहा नहीं कर सकते मेरा साथ, मेरा ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मेरे दिल में अल्लाह का डर है, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, मेरे दिल में नबी की मोहब्बत है। इस नबी की मोहब्बत को तुम मेरे दिल से जुदा नहीं कर सकते। बिलाखिर दूसरी शब्द जब अबू जहल ने हजरत जिन्नीरा को तकलीफ देते देते खुद थक गया, कम वक्त हमारा अबू जहल ने और अबू लहब ने। लेकिन याद रखो जिन्नीरा के दिल में जो ईमान का करंट लगा था, उस ईमान के करंट को नहीं हटा सका। हजरत जिन्नीरा को दोबारा पैगाम भेजा गया, जाओ अबू बकर सिद्दीक से कहो कि जिन्नीरा को आजाद कराने के लिए आए थे, चाहे तो आजाद करा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिन्नीरा के लिए, हजरत जिन्नीरा की आंखों की बीनाई को लौटाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया। हाथ उठाना था कि जिन्नीरा की आंखों की रोशनी वापस कर दी गई। मेरी माँ बहनों, तुम होती, तुम किसी बर्थडे में जाती हो, तुम कॉलेज में फंक्शन में जाती हो, कभी एनुअल फंक्शन होता है, तुम यूनिवर्सिटियों में जाते हो, तुम इंटर कॉलेज में जाते हो, एनुअल फंक्शन होता है, मखलूत तालीम का निजाम, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। शायद तुम्हें नहीं पता कि हिंदुस्तान में इर्तिदाद की जो आदि चली है, आज नहीं 1923 में भी अगर तहरीक पढ़ोगे, शुभी तहरीक चली थी, कैसे परवान चढ़ी थी, ऐसे ही परवान चढ़ी थी जो कि यहूदियों का ये निशाना था। और यहूदियों के इस निशाने पर पता है पाकिस्तान ने भी अमल करना शुरू किया। अब लड़कियों ने क्या कहना शुरू किया, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जब चाहेंगे अपनी मर्द के साथ सोएंगे, जब चाहेंगे किसी और के साथ जाएंगे। यहूदियों ने उनके दिल में ये बात डाली है, और तो तुम आजाद हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात है जो तुम्हें 4 दीवार के अंदर रहने की तालीम देता है, बुर्के के अंदर रहने की तालीम देता है। ओ कमबख्त मारो, ओ अबू जहल की दुकान चमकाने वालों, तुम कैसी तालीम देते हो। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो औरतों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत की है, औरतों की इज्जत लुटने से बचाया है, औरतों को जिंदा तरगोर करने से बचाया है, बेटियों को इज्जत दिलाई, बेटियों को मकाम दिलाया। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले बताओ कोई ऐसी तारीख पेश कर सकते हो कि अबू जहल की औलाद, ये सरदाराने मक्का जिस तरह जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ रहे थे, इनको हुकूक भी नहीं दिए जाते थे, इनको अपनी दौलत में से हिस्सा भी नहीं दिया जाता था। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात में है कि औरतों को अपनी जायदाद में से तरका दिया करो। अगर 1 रुपए है तुम 8 आना ले लो, 2 बहन है 4 आना करके दोनों बहन को दे दो। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात में दिया है। तुमने क्या दिया औरतों को, तुमने क्या दिया है? अगर दिया है तो बेहयाई दिया है। तुमने अगर दिया है तो लड़कियों को 20 सड़कों पे नाचने का काम कराया है, लड़कियों को दुकानों पे बैठाकर कस्टमर को पढ़ाने का काम किया है। आज यहूदियों के तालीम के मुताबिक, मगरिबी तहजीब और सकाफत के मुताबिक लड़कियों के हाथ में एंड्रॉइड फोन दे दिया गया, जिसे तुम सेल फोन कहते हो। लेकिन पीर जुल्फकार नक्शबंदी अल्लाह वाले हुआ करते, दिल की दुनिया बदलने की बात किया करते। हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने लिखा है, दरअसल ये सेल फोन नहीं है बल्कि ये हेल फोन है, जिसे तुम सेल फोन कहते हो। ये हेल फोन का मतलब ये जहन्नम ले जाने वाला फोन है। यही
कई फोन है, जब लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। कभी फेसबुक में तुमने देखा होगा, लड़की लड़का बनता है, लड़का लड़की बनकर एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, वो एक्सेप्ट करता है, चैटिंग शुरू होती है, बात चैटिंग पे आते आते वॉइस कॉल पे आती है। और खूब याद रखो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा का लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह। जब इंसान किसी से बात करता है, ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कलाम कहता है, और अल्लाह के कलाम की तफसीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे। बात करते करते जब तबीयत भर गई तो हजरत मूसा ने मन्नत करी, रिक्वेस्ट करी, दरखास्त रखी, या अल्लाह आपकी ज़ियारत का तलबकार हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। बात जब बात पर पहुँचती है तो बात देखने तक की आ जाती है। हजरत मूसा ने जब बार बार जिद फरमाई, इसरार फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हल्की सी तजल्ली कोए तूर पर रखी, मूसा बेहोश गिर पड़े। बुजुर्गों साथियों, ऐसे ही हमारी नौजवान लड़कियां, ऐसे ही हमारे नौजवान लड़के जब एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, वॉइस कॉल तक पहुंचते हैं, वीडियो कॉलिंग तक बात पहुंचती है। जब बात वीडियो कॉलिंग तक पहुंच जाती, ये तो अक्से जमीन है, जब अक्से जमीन तक बात पहुंचती है तो डेटिंग सेटिंग के लिए किसी अच्छे होटल का इंतजाम किया जाता है, किसी अच्छे होटल का इंतजाम करके वहां लड़के लड़कियां, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेटी तो तुम्हें ये कह के गई थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं कॉलेज पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी कॉलेज पढ़ने नहीं गई। मुंबई के एक बहुत बड़े मौलाना थे, नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इशारे के तौर पे बात बता रहा हूँ। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को MBBS करा करके लड़कियों की इज्जत बचाऊंगा, क्योंकि अक्सर व बेशतर जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मर्द हजरात अल्ट्रासाउंड के थिएटर पे होते हैं, वहां लड़कियों का कपड़ा थोड़ा उतारा जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड शर्मगाह से लेकर पूरे सीने का किया जाता है। क्यों? इसलिए कि बच्चा किस करवट में है, हरकत ले रहा कि नहीं ले रहा, बच्चे की जुम्बिश हो रही कि नहीं हो रही, हरकत हो रही कि नहीं हो रही। मौलाना के दिल में ये बात आई, हम अपनी बेटी को MBBS कराएंगे, उसके जरिए से हम एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलेंगे, उसके जरिए कम से कम कुछ मुस्लिम लड़कियों की इज्जत बचाने का काम करेंगे। मौलाना को शायद इस बात की खबर न थी, हम अपनी बेटियों को मखलूत तालीम के निजाम में भेज तो देंगे, लेकिन मेरी बेटी क्या हशर करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी अपनी इज्जत का सौदा कर बैठेगी। मौलाना ने बड़ा सपना देखा था, बड़ा ख्वाब देखा था, उम्मत की फिक्र करी थी, लेकिन उसकी बेटी के बारे में तुम्हें नहीं पता। 4 साल तक उसने MBBS का कोटा मुकम्मल किया, आखिरी साल था, 5वां साल MBBS का आखिरी साल होता है। मौलाना ने मोटी रकम खर्चा करी, लेकिन आखिरी साल में मौलाना की बेटी, एक दिन इत्तेफाक की बात है, ऐसे ही बात व्हाट्सएप पे होती थी, चैटिंग पे होती थी, होते होते मिलने तक बात आ गई। जब बात मिलने की आ गई, मौलाना की उस बेटी के जरिए से उस लड़के के जरिए जिससे बात होती थी, उसके जरिए हमल फैल गया। फिर क्या कहना, आखिरी साल था, बताओ बाप ने बेटी को किस ख्वाब से पढ़ाया था, किस ख्वाब से बड़ा किया था, क्या ख्वाब देखे होंगे, लेकिन उस बेटी ने बाप की इज्जत को भी न सोचा, माँ की इज्जत को भी तार तार किया, इस्लाम की भी उसने धज्जियां उड़ाई, इस्लाम की दौलत को भी उसने पामाल किया। आखिरकार वो लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है। मौलाना रोते रोते बिलखते बिलखते परेशान हो गए, मौलाना ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। मौलाना ने करीब के थाने में FIR दर्ज कराई, लेकिन 1 महीने हो गए, मौलाना को अपनी बेटी का कोई सुराग न मिला। 1 महीने के बाद पता चला कि मौलाना फला लड़के के साथ जाकर कोर्ट मैरिज किया है और कोर्ट मैरिज करके भाग गई है। बताओ बुजुर्गों साथियों, मौलाना ने कोर्ट में केस किया, और केस ये किया कि मुस्लिम एक्ट में तो ये बात थी कि जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे आपस में जब मैरिज एक्ट करेंगे, मैरिज एक्ट में ये बात कही गई थी कि उसके गार्जियन को एक सूची दी जाएगी, एक अलर्ट मैसेज दिया जाएगा, लेकिन अलर्ट मैसेज क्यों नहीं दिया गया? तो मुंबई हाई कोर्ट ने जवाब दिया, मौलाना साहब आपको शायद मालूम न हो, 2019 में ये कानून बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। अब कोई लड़का लड़की अगर दोनों 18 साल की उम्र हो चुकी होगी, 18 साल से प्लस की उम्र हो गई होगी, अब माँ बाप की रजामंदी जरूरी नहीं, अब माँ बाप को अलर्ट मैसेज नहीं दिया जाएगा। लड़का लड़की कोर्ट में शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद चाहे जहां जाएंगे, उसे उसकी जिंदगी आजाद के साथ हिंदुस्तान के संविधान उसे इस बात की इजाजत देती है। बुजुर्गों साथियों, मौलाना रोते रोते बिल्कुल आंसू बहलाते, आंसू बहाते नालियां जारी हो गई। मौलाना ने कहा ये कब कानून बदला है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी यही खबर दी गई कि 2019 में जब लव जिहाद का कानून बन रहा था तो ये कानून भी पास कर दिया गया।
बुजुर्गों साथियों, हौज के नाखुन लेने का वक्त है, इसलिए अपनी बेटियों को 3 तरह के लिबास पहनाने से बचाओ। बचाओगे इंशाअल्लाह? सारे साथी हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मैंने नंबर 1 कौन सा लिबास? नंबर 1 टाइट लिबास पहनाने से बचाओ। बचाओ, ईद नहीं आई, रमजान नहीं आया, तुम्हारे रमजान के रोजे खराब कराने की हर मुमकिन प्लानिंग हो रही है। क्या समझते हो तुम इधर रोजा रखते हो, उधर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कभी डीएम ड्रेस बनता है तो कभी क्रॉप टॉप बनता है। तुम्हें पता नहीं टाइट कपड़े पहनाकर तुम अपनी बेटियों को इधर उधर भेजते हो। तुम्हारी बहनों की, तुम्हारी बेटियों की इज्जत नौची जाती है। इसलिए नंबर 1 टाइट कपड़ा पहनाने से बचाओ। नंबर 2 जालीदार कपड़ा पहनाने से बचाओ। देखते हो ना, यहां से लेकर यहां तक पूरा नेट का कपड़ा होता है। हजरत मौलाना अंजर शाह बेंगलोरी तो बहुत भोंडा अल्फाज के साथ बोलते थे, और कहना चाहिए, गली के कुत्ता और कुतिया से भी बदतर हो गए अब तो नौजवान लड़के लड़की। बुजुर्गों साथियों, हौज के नाखुन लेने का वक्त। तीसरा लिबास कौन सा है? तीसरा लिबास छोटा लिबास। छोटा लिबास। आजकल मुस्लिम लड़कियां कॉलेज जाती हैं, क्रिश्चियन कॉलेज जाती है, क्या बहाना करती है? एडमिशन नहीं था, ना होने दो एडमिशन। क्या हो गया? नहीं हुआ एडमिशन तो जाओ किसी और जगह पे जाके पढ़ लो। जाओ, तुम्हारे उड़ीसा का जो बोर्ड है, क्या उड़ीसा पढ़ लेने? उड़ीसा बोर्ड में अगर तुम्हारी बच्ची का एडमिशन होगा, अच्छी तालीम नहीं होगी, होगी अच्छी तालीम, क्या जरूरत है किसी क्रिश्चियन स्कूल में तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाने की? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुफक्किर इस्लाम थे, अल्लामा इकबाल ने इस फिक्र को समझा था और कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आज बताओ, हमारी तुम्हारी तालीम फितने की आमाजगाह नहीं बनी हुई है? बताओ बनी कि नहीं बनी? तुम्हारी बच्चे बीएससी कंप्लीट कर रही है, बीए कंप्लीट कर रही है, बीकॉम कंप्लीट कर रही है, ग्रेजुएट कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, एमटेक, बीटेक, एलएलबी कर रही है, मास्टरेट कर रही है, सब कुछ कर रही है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह AA किया हुआ हूं। लेकिन याद रखो, सबसे पहले अपनी बेटियों को मुसलमान बनाओ। सबसे पहले उसे बताओ कि बेटी, इस्लाम की तालीमात ये है। तुम मर जाते हो, तुम्हारी बच्ची, तुम्हारा बच्चा इस लायक भी नहीं होते कि तुम्हारी कब्र में जाकर फातिहा पढ़े। तुम्हारा बेटा इस लायक भी नहीं होता है। इसीलिए कुरान ने कहा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये तो तुम्हारी औलाद है और ये जो तुम्हारी दौलत है, ये दोनों फितना है। फितना से क्या मुराद? यानी ये दोनों चीजें आजमाइश। तुम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, भेजते हो मदरसा, नहीं भेजते हो ना साहब? ओ नौजवान लड़कों, अगर वाकई तुम्हें मौत नहीं आनी है, अगर तुम समझते हो कि बुढ़ापे में मौत आएगी, हम तो तैयारी कर लेंगे, तो फिर तुम जैसी चाहो वैसी जिंदगी गुजारो। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में हादसा के जो मौत वाक़े हो रहे हैं, सबसे ज्यादा 30 समथिंग यानी 20 से 30 के एज के लड़कों की मौत वाक़े हो रही है। हादसा में सबसे ज्यादा नौजवान लड़कों की मौत होती, और उसमें भी ये बात कही गई कि ज्यादातर बोतल चढ़ाने के बावजूद, बोतल चढ़ाने के बाद की मौत होती है। ये खुद भी कुत्ते की मौत मरते हैं और दूसरों को भी कुत्ते की मौत की तरफ धकेलने का काम करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कहने की बात है तो बहुत कुछ है, लेकिन यकीन जाने मेरी तबीयत भी नासाजगार है और आप खाना भी नहीं खाए हो। इसलिए जो बातें कही गई, मोटी मोटी बातें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मैंने हदीस पढ़ी है, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। आप हुकूमत को कुछ ना कहो, ना कहो, कुछ ना कहो, खुदारा ना कहो, जरूरत नहीं है आपको, नहीं है जरूरत आपको। आपके पास इतनी बड़ी सियासत है, मेरे नबी की जिंदगी से बढ़ के कोई जिंदगी की सियासत हो सकती है? हर बार पे आपने जीना सिखाया, हर बार पे आपने तरीका सिखाया है। ओ भाइयों, गांधी जी का पैगाम नहीं पढ़े हो? गांधी जी ने 1947 के बाद 1944 में दिल्ली के मीटिंग में क्या बात कही थी? पेपर में बहुत दफा ये मजमून छपा था। गांधी जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छी हुकूमत करनी हो तो अबू बकर उमर की तारीफ पढ़ना उसके लिए जरूरी है। गैरों
को मेरे बारे में पता है, लेकिन हम इतने बेइस कौम हो चुके, इतने गिरे हुए लोग हो चुके हैं, हमारे बारे में उन्हें मालूम, लेकिन हम हैं, हमें अपनी तारीख का इल्म नहीं। ये नौजवान लड़का, ये नौजवान लड़की से नहीं पता कि जिन्नीरा की तारीख क्या है, सुमैया की तारीख क्या है। इन नौजवानों को नहीं पता बिलाल हबशी की तारीख क्या है। घसीटा जा रहा था और अब की तख्ती सेरा पे लिटा दिया गया, लेकिन जुबान है कि हद हद की सराय थी। तुम कैसे मुसलमान हो? तो 4 लाख रुपए में अपने ईमान का सौदा कर बैठते हो, तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हें क्या लगता है कि ईमान से बढ़ के कोई दौलत हो सकती है? नहीं मेरे बुजुर्गों साथियों, इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं है। अगर इससे बढ़ के कोई दौलत होती तो कल की रिपोर्ट आई है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी जो कल तक ये ऐलान कर रहा था कि मेरा सबसे बड़ा पेशवा, मेरा सबसे बड़ा रहबर और रहनुमा आने वाला है। किसी ने कहा कौन सबसे बड़ा पेशवा, रहबर और रहनुमा और लीडर है? उसने कहा काना दज्जाल की आमद होने वाली है। हाँ बुजुर्गों, तुम्हें पता नहीं है, काना दज्जाल की आमद होने वाली है, क्योंकि क़यामत की जो अलामतें बताई गई थी, माओ को जलील किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शराब नोशी आम होगी, सट्टाबाजी का बाजार गर्म होगा, लड़के ड्रीम 11 लगाते हैं, लूडो खेलते हैं, फला टीम की तरफ से 200 रुपए 500 रुपए कुर्सियां तोड़ते, टीवी तोड़ते। अरे कौन जीत रहा, कौन हार रहा, तुम्हें क्या पता है? और तो और ये कुछ मुस्लिम नौजवान लड़के अभी दिल्ली के लाल किले के पास फिल्म देखने गए थे, पठान फिल्म। इससे किसी ने कहा क्यों आए हो? सर पे टोपी लगा के आए हो, तुम्हारे चेहरे पे तो अच्छी खासी दाढ़ी है, क्यों आए हो फिल्म देखने के लिए? मीडिया वाले ने पूछा। पता है ये नौजवान लड़का कितना जोशीला था? इसने कहा अरे शाहरुख खान मेरा भाई है, हम उसकी मूवी को हिट करने के लिए आए हैं, है ना तुम्हारा भाई, घबराओ नहीं, शाहरुख खान ही के साथ तुम्हारी मौत होगी, उसी के मुताबिक तुम्हारी जनाजा करी जाएगी। वो भी याद रखो, इतने मारे जाओगे ना, इतने पीटे जाओगे, दिमाग के चेहरे बाहर को आ जाएंगे, फेरे बाहर को आ जाएंगे। जब फरिश्ते की कुटाई होगी, मलकुल मौत का चेहरा जब आता है, किसी मरने वाले अगर बात होने की होती तो पूछ लेते कैसी भयानक घड़ी होती है, कैसा भयानक मंजर होता है जब मलकुल मौत का चेहरा आता है सामने। कुरान ने कहा कुल यदवफ़ाकुम मलकुल मौत उक़रा बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। इसके तफसीर में हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी ने लिखा है, मरने वाला मलकुल मौत के चेहरे को देखकर पेशाब पैखाना तक कर बैठता है, इतना भयानक होता है। तुम क्या समझते हो? तुम पठान फिल्म को हिट करने आए हो? तुम पठान फिल्म को हिट करने आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस्लाम की तालीमात हमसे छूट रही है? हमने कब्र की तैयारी नहीं करी, हमने आखिरत की फिक्र नहीं करी, हमारा माँ बाप हमसे रूठा हुआ है, हम माँ बाप को कभी नहीं मनाते, शराब के नशे में हम चूर हैं, समाज को हम गंदगी की तरफ धकेल रहे, बहन बेटियों की इज्जत पे हम डाके डाल रहे, हम दूसरों को बुरा भला कहते, हम दूसरों को कोसते। इतने बेशरम, इतने बेहिस नौजवान आजकल के हो गए। तुम पठान फिल्म को हिट करने गए हो? सलमान खान तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है? सलमान खान कौन है साहब? कोई नहीं है, इस काम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नाम मुसलमान रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या समझते हो आप? ईद की सवैयां खा लिए, गोश्त खा लिए, हलवा पराठे ठूस लिए, बिरयानी की दुकानों में जाके बिरयानी की दुकानें गर्म कर दी, हो गए मुसलमान, हो गए मुसलमान। अब्दुल्ला नाम रख लिया, हो गया मुसलमान? नहीं बुजुर्गों साथियों, याद रखो इस्लाम का मतलब क्या होता है। सलामती, भाईचारगी, मोहब्बत, मानना। आप अपने अंदर मानने की सिफत पैदा करो। आज उठो इस मजमे से, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई मेराजी, कोई सल्फी, कोई जमाती इस्लामी, कोई हो, सब मेरा भाई है। इस अज़्म को लेके उठो। मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ बरेलवी के बहुत सारे मौलवी अनाप शनाप बक रहे, आपे से बाहर आता है, पैजामे के बाहर आता है। मैं कुछ नहीं बोलता, आपसे भी कहता हूँ कभी भी इस कमबख्त के मारे सलमान अज़हरी की तकरीर मत सुनना। इतनी गंदी तस्वीर हजरत मौलाना जानशीन इस्लाम अरशद मदनी दामद बरकातुहुमुल आलिया की लगाई है। उसने अपने फोटो के साथ थंबनेल में देखोगे तुम्हें गुस्सा आएगा, कलेजा मुंह को आएगा। लेकिन हमें पता है ढक्कन को ओढ़ के बिस्तर पे जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरों से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए।
मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। इनके मौलवियों में एक मजार का पुजारी होता है, चेहरे से देखना कहीं इस्लाम की कोई चीज मालूम नहीं होती, नाम मुसलमान रखने से मुसलमान नहीं हो जाता। सलमान रुश्दी भी तो दावा किया था, तारिक फतेह भी तो दावा किया था। तुम्हें पता है केरल का गवर्नर है आरिफ खान, एनडीटीवी में आकर के पर्दे की तालीम देता है मुसलमानों को। अब तो क्लीन शेव बिल्कुल अंग्रेज के चेले चपाटे जैसे मुफ्ती मिल जाते हैं। इसलिए कयामत की ये घड़ी है, कयामत की निशानियां हैं। याद रखो जब इल्म दीन को उठा लिया जाएगा, लोग उलमा के बजाय इन कटमुल्लों से जो टीवी स्टूडियो में आकर इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, दाढ़ी चेहरे पे नहीं होता, इस्लाम की बात करता है, ये कहता है हिजाब इस्लाम में नहीं है। अरे कमबख्त तुम्हारे, तुमने क्या पढ़ा इस्लाम को? पढ़ो कुरान करीम को, जिसमें मेरे नबी को यह हुक्म दिया जा रहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। मेरे नबी को यह हुक्म दिया जा रहा है, ऐ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, बेटियों को, उम्मत की बेटियों को इस बात की तालीम दीजिए कि वो सरों पे दुपट्टा रखें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपने चेहरे की हिफाजत करें, सीनों पे दुपट्टा रखें। बताओ, लेकिन ये ऐसे ऐसे चिकने चवेले मुफ्ती बनते हैं, ये मुफ्त के मुतबी मुफ्ती आकर। लेकिन हमारे कुछ नौजवान लड़के इनके बहुत बड़े फैन फॉलोवर हैं। जब देखो इनके मोबाइल में इनको सुनेंगे, मौलाना तारिक जमील को नहीं सुनेंगे, ये अल्लाह वाले हैं ना, मौलाना अरशद मदनी को नहीं सुनेंगे, हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन बरकी को नहीं सुनेंगे, किसको सुनेंगे? आरिफ खान को सुनेंगे। बहुत अच्छा बोलता है, वाह क्या कहने हैं साहब। इंडिया टीवी में आता है, दहाड़ता है, इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। अरे नहीं, इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। तारीफ पता आता है आज तक में, ये इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, बल्कि इस्लाम के नाम पे ये सारे के सारे लोग बदरुआ दाग हैं। इस्लाम को मिसमार करने के लिए इन सारे लोगों को छोड़ा गया है। ये यहूदियों की नापाक औलाद है जो मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसलिए लोगों, उलमा से अपने रिश्ते को जोड़ोगे इंशाअल्लाह। क़यामत की 3 अलामतें हैं। माओ को जलील किया जाएगा, जालिम जुल्म करना बहुत खेल समझ लेगा, पड़ोसी का हक अदा नहीं करेगा। दूसरी अलामत बताई गई, शराब नोशी आम हो जाएगी, सट्टाबाजी का बाजार गर्म हो जाएगा। तीसरी अलामत बताई गई, निकाह जो सबसे अच्छा अमल, सबसे महबूब अमल, सबसे नेक काम, निकाह को बहुत भारी भरकम बना दिया जाएगा, बहुत भारी भरकम बना दिया जाएगा। और ज़िना इस धरती में जो सबसे गंदा काम, सबसे पाप काम है, ज़िना के रास्ते और ज़िना के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। एक सिविल कोड नाफिज कर दिया गया, आपको क्या पता? अब करो ना 18 साल से पहले अपनी बेटियों की शादी करना, लेकिन छुप छुपा के करना। वरना याद रखो, अब हुकूमत ने कानून बना दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, आप भी पर्दे के आड़ में सुन रही हो, कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक, हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, वरना याद रखो हम बर्बाद हो जाएंगे। आमालुकुम अम्मालुकुम, मेरे नबी का फरमान, जब तुम्हारे अमाल बिगड़ जाते हैं, जब तुम्हारे सरों पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है। अभी वक्त है हमारे पास, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ के दफात, यहाँ के कानून, यहाँ के सारी चीजें, संविधान अभी इन सारी बातों की हमें इजाजत देता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बाप हो, भाई हो, नौजवान, अगर किसी के को आप शोहर हो, आप सबकी जिम्मेदारी अपनी बहनों की इज्जतें लुटने से बचाओ, बेटियों की इज्जतें लुटने से बचाओ, बीवियों की इज्जतें लुटने से बचाओ। आखिरी वाकया, अपनी बात को खत्म। एक नौजवान शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आया और उसने कहा, मैं इस्लाम कबूल करूंगा लेकिन एक शर्त है। मेरे नबी ने फरमाया, क्या शर्त है? बताओ अपनी शर्त। उस नौजवान ने कहा, मुझे रोजाना नई लड़की चाहिए मुंह काला करने के लिए, आप इस बात की इजाजत दो। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मानोगे? उस नौजवान ने कहा, ठीक है, इतनी बड़ी इजाजत, जिस बात की लत लगी हुई है और उसी बात की आप इजाजत दे रहे और एक शर्त रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी शर्त भी मुझे मंजूर है। तब मेरे नबी ने क्या फरमाया? ओ नौजवानों, दिल के कान से सुनना। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, तुम्हें इजाजत है कि तुम मुंह काला करो रोजाना नई लड़कियों के साथ, लेकिन 4 औरतों के सिवा जिससे चाहो उससे मुंह काला करना।
وہ 4 लड़कियां, वो 4 औरतें कौन है? नंबर 1 वो किसी की माँ न हो, नंबर 2 वो किसी की बेटी न हो, नंबर 3 वो किसी की बहन न हो, नंबर 4 वो किसी की बीवी न हो। उस नौजवान ने कहा आप इजाजत दे रहे हैं या जाल में फंसा रहे हैं? तब मेरे नबी ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, आपके जुबान मुकद्दस से जिन कलिमात का ज़हूर होता है, अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए मेरे नबी के ज़ात अक़दस पर। आपने फरमाया है नौजवान शख्स, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर तुम्हारी माँ की इज्जत को कोई लूटे तुम क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा हम उसके बखिए उधार देंगे। फिर मेरे नबी ने फरमाया है नौजवान शख्स बताओ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी की कोई इज्जत को तार तार करे क्या करोगे? कहा उसकी बूटी बूटी बनाकर मैं कौवे और चील को खिला दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी बहन की इज्जत को कोई डाका डाले क्या करोगे? कहा उसके बखिए उधार दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे तो क्या करोगे? कहा उसको इतना मारूंगा कि उसका भेजा बाहर को आ जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम जिस लड़की से मुंह काला करोगे वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी। ओ नौजवानों, कुरान ने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, तुम पाक दामन रहोगे, आने वाली लड़कियां जो तुम्हारी बीवी बनेंगी वो भी पाक दामन रहेंगी। इसलिए जब भी तुम किसी लड़की को देखो याद रखो, समझो कि वो मेरी बहन है। हमने भी कलमा पढ़ा है, उसने भी कलमा पढ़ा है, और कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले का भाई हुआ करता है। बताओ इस पे अमल करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा और आपको सुनने से ज्यादा इस पे अमल करने की तौफीक अता करे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। जिन्हें तस्बीहों की लत लग गई है, जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है, उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहां पर मोहब्बत का हो बोल वाला शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लजीना अनमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं, मग़ज़ूब हैं जालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ना खुदा भाई दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह हमारे साथ रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह हमारे सय्यात को सालिहा से मुबद्दल फरमा। ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ रहमुर राहिमीन, हम सब लोगों को अपनी मर्जियात पर चलना आसान फरमा। हे अल्लाह हमारे उलमाए किराम ने, हमने जो बातें कही हैं और सारे लोगों ने जो बातें सुनी है, ए अल्लाह हमें कहने से ज्यादा, लोगों को सुनने से ज्यादा उन्हें अपनी जिंदगियों में उन बातों को उतारने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह अकरमुल अकरमीन, आज आलम इस्लाम में जहां भी देखे ए अल्लाह मुसलमान परेशान हाल है। ए अल्लाह यकीनन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तेरे हुक्म को हमने तोड़ा है, तेरे नबी की सुन्नतों को हमने रोका है। हे अल्लाह हम करारदार मुजरिम हैं, हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं। हे अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह इस मजमे में जितने लोग हाथ फैलाए हैं सबों के हाथ फैलाने को कबूल फरमा। अल्लाह करीब की एक बस्ती में एक भाई हैं फजलुर रहमान साहब, जो इस दारे फानी को अलविदा कहकर हमेशा हमेश की जिंदगी की तरफ कूच कर गए। ए अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह गरीक़ रहमत में उसे जगह नसीब फरमा। ए अल्लाह इस बस्ती में एक भाई है जो कैंसर के मरज में मुब्तला है, जो मोहलिक अमराज में से, लेकिन या अल्लाह तू शिफा देने पे आएगा तो तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह शिफा देने वाली जात तेरी है, हुक्मरानी तेरी चलती है।
تو یا اللہ اے اللہ کبھی کبھی پانی میں بھی شفا دے کر زندگی بخش دیتا ہے. اے اللہ وہ بھائی جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اسے شفا عطا فرما. یا اللہ اس مہلک مرض سے اسے شفا عطا فرما. یا اللہ اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جن نوجوانوں اس ترتوا کے لوگوں نے جس طرح کی بھی جیسی محنت کری ہے یا اللہ ان کی قربانیاں ہیں, بے شک تیرے دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کری ہیں. یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما, ان نوجوانوں کو قبول فرما. اس گاؤں کے بچے کو دین کا دائی, دین کا سپاہی بنا. اس گاؤں کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کا کنیزہ بنا. یا اللہ ان کی زندگیوں میں پردے کو شامل اور داخل فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ جمعہ کا دن گزرا کہ مسجد اقصی میں یہودیوں نے بمباری کی ہے. اے اللہ ان یہودیوں کے ساتھ اپنا جبار اور قہار والا معاملہ فرما. ہم مسلمانوں کی آبیاری فرما, ہم مسلمانوں کی سرفرازی فرما. یا اللہ صحابہ نے کہا تھا متا نصر اللہ, تو نے کہا تھا لا ان نصر اللہ قریب. یقیناً میرا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے لیکن ہم صحابہ کے غلام ہیں. اے اللہ ہم صحابہ کے ڈگر پر چلنے والے لوگ ہیں. اے اللہ ہم بھی کہتے ہیں متا نصر اللہ. اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ امت پریشان ہے. یا اللہ فلسطینی معصوم بچے بچیوں کو آئے دن بم بارود کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اے اللہ ترکی میں زلزلہ آیا, کتنے معصوم بچے بچیوں نے زندگی کھوئی, شہادت کا درجہ انہیں حاصل فرما دیجیے. کتنے لوگ ہیں جو سوئے تھے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھیں گے, لیکن یا اللہ اے اللہ بستری میں ان کی آخری رات ہو گئی, آخری شام ہو گئی. اے اللہ یقیناً تو جب چاہتا ہے موت کے فرشتے کو بھیج کر ہماری روح نکال لیتا ہے. اے اللہ ہم سارے لوگ آج اس میدان میں ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں. اس مجمع میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, جوان بھی ہیں, علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں. پتہ نہیں ان میں تیرا کون ایسا برگزیدہ منتخب بندہ ہو. یا اللہ اس بندے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. ہم مسلمانوں کے ساتھ اپنا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم وہ فقیر ہیں جو مانگنا بھی نہیں جانتے, کس طرح مانگا جائے, کیا مانگا جائے. اے اللہ ہمیں مانگنے کا صحیح سلیقہ عطا فرما, صحیح ڈھنگ عطا فرما. یا اللہ میرے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی تھی, اے اللہ ہمیں بھی اس میں حصہ عطا فرما. اے اللہ میرے نبی نے جن کاموں سے بچنے کی دعائیں کی تھی, اے اللہ ہم بھی بچنے کی دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما. اے اللہ یہ ظالم جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے, اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ سپر پاور تو ہے. درخت ایک پتا گرتا ہے تو تیرے حکم سے گرتا. تو نے کتنے فرعون اور کتنے حامان اور صداد کو دھول چٹایا, عبرت کا نشان بنایا ہے, تو نے ڈھیر کر دیا. اے اللہ اے سپر پاور, یا اللہ تو اپنا جبار اور قہار کا ایک بار معاملہ دکھا دیجئے نا. اے اللہ دکھا دیجئے نا. تیرے نبی کی امت پریشان ہے. یا اللہ تیرے نبی کی امت کی بیٹیوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا, دن دہاڑے سڑکوں پہ لوٹا جاتا. اے اللہ ہمارے نوجوان آج شراب کے نشے میں چور ہیں. اے اللہ شراب پینے کی وجہ سے یہ ماں باپ کی عزت بھی نہیں کر پاتے, ماں باپ کو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں, بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں, جس طلاق بولنے کی وجہ سے تیرا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے نا. اے اللہ ہمیں اپنا منتخب بندہ بنا لیجئے نا. ہمیں صدیقین صلحاء شہداء کے صفوں میں شامل فرما لیجئے نا. اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہیں. اے اللہ تو بھلائی کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کی سمندر سے نکال لیجئے نا. اے اللہ اڑیسہ میں جس طرح امن و محبت کا گہوارہ ہے, ایسے ہی دیش پورے ملک میں امن و محبت کا گہوارہ بنا دیجئے.
या अल्लाह उड़ीसा में ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी है, इस हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को कायम फरमा। ए अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा था या जिनका हक बनता है या हम सोचते हैं कि हम उनको अपने दुआओं में शामिल रखेंगे, उन सब लोगों की जायज तमन्नाओं को कबूल फरमा। या अल्लाह आज ही सुबह हम लोग हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब के घर गए थे। हे अल्लाह मौलाना को बाइज्जत की आई नसीब फरमा। कुछ ही महीने बचे हैं। हे अल्लाह 32 दांत के नीचे भी अगर कोई चीज होती है तो उसकी भी तू हिफाजत करता है। ये अल्लाह काले पहाड़ में काली चूटी काले रास्ते में चलती है तो उसकी आवाज को भी सुनता है। ये अल्लाह तू वरन वक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, हमारे शहर से ज्यादा करीब है। या अल्लाह मौलाना की बाल बाल हिफाजत फरमा, उनके घर बाल बच्चे की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जितने भी बेगुनाह बेकसूर लोग जेल की सलाखों में है, हमारा भाई भी उसमें से एक भाई जकी अहमद भी है तो बेगुनाह जेल में। ए अल्लाह उसकी बाइज्जत रिहाई नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने बेगुनाह हमारे उलमा जेल की सलाखों में बाइज्जत रिहाई नसीब फरमा। हमारी टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फजल करम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिक या अरहम। हज़रात गिरामी माशाअल्लाह जलसा खत्म हो गया। अब जो हज़रात नमाज पढ़ ली है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पिंडाल पे इंशाअल्लाह दस्तरखान लग जाएगा। आप हज़रात खाना खा लीजिएगा और जो हज़रात नमाज पढ़ी नहीं है उनसे दरखास्त है स्टेज में इंशाअल्लाह थोड़ी देर में नमाज होगी तो आप हज़रात से फारिग हो गए।